Hello everyone, this is JD Sharma and you are watching English. And in this video, we are going to tell the summary all the novels of the Forsyte Chronicles, which includes Forsyte Saga, the modern comedy, and end of the chapter. So we'll try to touch the synopsis और the main story all these novels. साथ ही साथ इसमें जितने भी मेजर कैरेक्टर्स हैं उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में उनका रिलेशन और उनकी डिटेल्स भी आपको इस वीडियो में मिल जाए. एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स. Since this Forsyte Chronicles is in the form of roman flow, that is a novel series or a river novel, so it flows in stories after stories. It makes complete saga, a long story following 2 or 3 generations. So some characters will be reappearing in other novels. So what is their relationship to other characters, you will get to know in this video. Plus आपको जो story बताई जाएगी वो story भी आपको काफ़ी help करेगी सारी चीज़ों के events को connect करने में, particularly characters को connect करने में. So let's start this video. First of all, let us understand all the major novels and stories of Forsyte Chronicles. Forsyte Chronicles is not Forsyte Saga. Actually, all the stories, all the novels following the lives and times of the Forsyte's character, they are collectively known as Forsyte Chronicles. So primarily these three, they are trilogies. Trilogy is a series of 3 novels. Here this is proper trilogy, and here in these two we have 2 interludes. This one and this one. 2 interludes are there in this first Forsyte Saga and 2 interludes are there in this second trilogy. This is the first sequel and this is the second sequel. The first story is Man of Property, then Chancery, and then To Let. And in modern comedy, The White Monkey, The Silver Spoon, and The Swan Song. And here in the 3rd chapter we have Maid in Waiting, Flowering Wilderness, and Over the River. एक चीज और आपको importantly ध्यान देनी है. In the Forsyte Saga and the modern comedy, the main characters are the Forsytes. और Forsytes represent Galsworthy's family as Galsworthys. The Forsytes are modeled on the family of Galsworthy. Here in this end of the chapter, the major characters are the cousins of Forsyte. They are distant cousins. They are called Charles. The pronunciation is Cheryl. So the Charles, they represent the maternal uncle of Galsworthy. Maternal family कह लीजिए आप Galsworthy. तो first 2 trilogies में Forsytes के बारे में हैं, जो सारे characters हैं वो Forsytes हैं, और last के जो concluding part है इस पूरे chronicle का वो Charles, the Charles. इनके बारे में वो. As far as this Forsyte change is concerned, so it is a collection of stories. And here जिन characters के बारे में है तो वो Forsyte Saga से पहले की जो कहानी होगी वो टाइम को डील करती हैं. ये स्टोरीज भी Forsyte characters के बारे में हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर से रिलेटेड हैं. जब ये स्टार्ट हो जाती है तो उससे पहले की स्टोरीज इन स्टोरीज में, ये कुछ स्टोरीज इनमें आपको Forsyte कैरेक्टर्स से रिलेशन में मिल सकता है. एंड पर्टिकुलरली दिस स्टोरी that was published in Villa Rubin. So here is the first mention of the Forsyte character. अभी कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे तो उसका नाम भी आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा. So the first ever novel in which there is a mention of any Forsyte character is this Salvation of Forsyte. Some of the stories from this collection, Forsytes, Fantasies and others, इसमें भी आपको मिल जाएंगी where the stories are about the times and lives of some or other Forsyte characters. Basically आज इस वीडियो में इन तीनों जो ट्रायलॉजीज हैं इनके जो मेजर कैरेक्टर्स और इनकी शॉर्ट समरी इसको डील करते हैं. दिस इज द फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल दीज ट्रायलॉजी. जितनी भी 9 नॉवेल्स हैं उनमें से सारे कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स आपको ये मिल जाएंगे. अभी इनका रिलेशन आपको बता दें. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड ओल्ड फोरसाइट्स बिफोर द स्टोरी कमेंसेस. जो फोरसाइट सागा की पहली स्टोरी से पहले आप समझ लीजिए कौन कौन से कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं. सबसे पहले एन इज द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली एंड देन शी रूल्स द फैमिली, शी डोमिनेट्स द फैमिली. जो होल्ड होता है पूरी फैमिली में वो एन का होता है. देन कम्स रोजर. Roger is the original Forsyte. Then there are 2 cousins, Old Jolyon and James. There was a first mention of any Forsyte character in Salvation of a Forsyte. So that was Swithin Forsyte. It is James' twin brother. First appeared in Salvation of a Forsyte. तो ये दोनों twins हैं. As a matter of fact, James is modeled on the father of John Galsworthy.
like him. He is a solicitor, a lawyer, and then his wife is Emily. They have 4 children, 3 daughters and 1 son. Soames is the son of James and Emily, and Winifred Forsyte is the daughter. She is one of three daughters. Rest of the daughters are not so much necessary. They are not mentioned even in any of the novels. Winifred is mentioned in Chancery. In Chancery के अलावा Winifred Forsyte का कोई जिक्र है नहीं, तो इसलिए पहले उसको बता देते हैं। विनीफ्रेड की एक डिस्टर्ब्ड मैरिज रही किसके साथ? मॉन्टेग डार्टी के साथ। दे हैव अ सन वॉल, सो वॉल इज विनीफ्रेड एंड मॉन्टेग्स ओनली सन। इनकी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। चांसरी क्या है? चांसरी इज ए कोर्ट जो डोमेस्टिक इश्यूज को देखती है, पर्टिकुलरली ऑफ डिवोर्स। जहाँ पे सोम्स का इरीन के साथ डिवोर्स होता है, वहीं उसी कहानी में ही विनीफ्रेड का मॉन्टेक्स के साथ डिवोर्स की बात भी चल रही है, उसको बाद में देख। जो फर्स्ट स्टोरी है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोटैगनिस्ट है सोम्स, मेन कैरेक्टर ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। हु इज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द टाइटल? सोम्स फोर्साइट। He is a solicitor, businessman, dominating kind of person, and then he loves his property. Unfortunately, इरीन जिससे शादी होती है इसकी, उसको भी ये प्रॉपर्टी ही समझता है, and as such he asserts his proprietorial rights on इरीन as well. सोम्स की फर्स्ट शादी हुई इरीन के साथ. It was his first marriage. Earlier Irene was known as Helen. Irene was a beautiful lady and Soames loved her. Irene did not love Soames so much in the beginning, or rather did not love him anyway at all. Since Irene was penniless, she was a destitute lady, मतलब poor, and then he was a dominating rich character, landlord. So Irene did not have any choice. She had to marry this person. Irene को इससे शादी करनी पड़ी. Nevertheless, there was no love between them, and as such, they did not have any child of their own. सोम्स और इरीन के कोई बच्चा नहीं था. मैरिज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो थी नहीं इनकी, लेकिन फिर भी ये हाउस इरीन के लिए इसने बनवाया. ये हायर करता है फिलिप बॉसनी. फिलिप बॉसनी इज एन आर्किटेक्ट. ही इज एन इंजीनियर आर्किटेक्ट हु मेक्स दिस हाउस. ड्यूरिंग दिस सिचुएशन इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इरीन वाज नॉट सेटिस्फाइड विद सोम्स. सोम्स अपने पैसे के बल पर इरीन को हासिल करना चाह रहा था. इरीन हैड नो चॉइस अदर देन टू सरेंडर बिफोर हिज विशेस. As such, she married. Anyway, फिलिप बॉसनी की एक और कहानी है जो पैरेलल कहानी अगर आप देखोगे. ओल्ड जोलियन जो जेम्स का कजिन, ओल्ड जोलियन इन फैमिली में सबसे बड़ा है. उसका बेटा था यंग जोलियन. यंग जोलियन had 3 marriages. फर्स्ट मैरिज जो थी वो किसके साथ थी? इसकी फ्रेंसर. The name of his first wife is फ्रेंसर. He was legally married to फ्रेंसर. And then they had a daughter, जून फोर्साइट. जून की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी थी फिलिप बॉसनी के साथ. इधर पैरेलल कहानी ये. सोम्स फोर्साइट एंड यंग जोलियन दे वर नॉट ऑन गुड रिलेशनशिप. दे हैड सम एनिमिटी बिटवीन देम. एक राइवलरी किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है. राइवलरी प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकती है. राइवलरी फैमिली को लेकर के हो सकती है. लेटर ऑन इट टर्न आउट टू बी मोर ऑफ अ फैमिली देन ऑफ बिजनेस. एनीवे इन दोनों में राइवलरी हमेशा से रही. सोम्स को इरीन के और फिलिप बॉसनी के लव अफेयर के बारे में थोड़ा सा डाउट हो जाता है. एंड एज सच ही वांट्स टू मेक अ प्लान टू पनिश देम और डू सम और अदर थिंग. मीनवाइल व्हाट हैपेंड? फिलिप बॉसनी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है. वेदर इट वाज कंट्रीव्ड प्लान्ड बाय सोम्स और नॉट, दैट यू कैन रिफर टू द स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी. एनीवे, Philip Bosny was killed in a car accident, in a street car accident. Irene was shattered, emotionally shattered. Soames इसको क्योंकि प्रॉपर्टी समझता था इरीन को, तो हमेशा अपने प्रोप्राइटोरियल राइट्स इस पे असर्ट करने की कोशिश करता रहा. In the end of the story, Soames wanted to make love with Irene, but she denied, and as such, forcefully he raped her. अपनी ही वाइफ का वो रेप करता है, और वहां से फिर वो इरीन इसको छोड़ करके अब्रॉड चली जाती है. मैन ऑफ द प्रॉपर्टी की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है. उसी बीच में अगर यंग जोलियन की कहानी को और थोड़ा सा देखते हैं तो इसकी दूसरी वाइफ थी हेलन. हेलन हु वाज हेलन? हेलन वाज जून्स गवर्नेस. जून जो इसकी बेटी थी उसकी गवर्नेस थी. अब गवर्नेस टीचर टाइप की भी समझ सकते हो, हु केम टू लुक आफ्टर जून. सो यंग जोलियन हैड एन अफेयर विद हेलन, एंड फॉर हेलन ही लेफ्ट फ्रेंसर. हेलन के चक्कर में अपनी फर्स्ट वाइफ को ये छोड़ दे. विद हेलन he had 2 children, Jolly and Holly. Jolly was a son and she was daughter. Jolly dies of enteric fever in Boer War. तो ये important point आपको याद रखना. How did Jolly die? So he died of enteric fever
ड्यूरिंग बोर वॉर। एंड ऑफ द स्टोरी। सेकंड जो चाइल्ड था हॉली, दैट वाज डॉटर। इसका ज्यादा कुछ कहानी में रोल है नहीं। तो ये कहानी आपके अभी तक मैन ऑफ द प्रॉपर्टी की कहानी है। नेक्स्ट कहानी शुरू होती है इन चांसरी, जो सेकंड पार्ट है फोर्साइट सागा का, इन चांसरी। इन चांसरी में स्टार्टिंग में क्या होता है, सोम्स को इरीन छोड़ के चली गई थी एंड इट इज 12 years सिंस। 12 years से सोम्स वॉज लिविंग अलोन, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो इरीन को प्यार करता था। He did not divorce her. He did not want to divorce her. उसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन, he wanted a son. He wanted a son from Irene. दूसरा, still he was hopeful that Irene would come to him one or other day. Since Irene was poor and then she needed some money and as such she would come to Soms one day or other. दूसरा रीजन और जो हो सकता है वो क्या है कि ये वो वाला विक्टोरियन टाइम था जहां पर डिवोर्स करना एक स्कैंडलस माना जाता है। सोसाइटी डिड नॉट अप्रूव डिवोर्सेस। एनीवन हु वांटेड अ डिवोर्स वाज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ जेंटलमैन। और उसका फर्क इसके बिजनेस में भी पड़ता, बिकॉज ही वाज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन द स्कैंडलस कैरेक्टर वुड हैव इट्स इफेक्ट इन हिज बिजनेस एज। सो अपने फैमिली नेम के लिए, अपने बिजनेस को स्पॉइल होने से बचाने के लिए और उस उम्मीद की खातिर कि इरीन कभी न कभी वापसी आएगी, he did not marry her. यहाँ पर भी बात खत्म नहीं हुई। सोम्स followed Irene to the abroad. वहाँ पर जाकर के पीछा करता है उसका and then he tried to convince her to come back to him and he demanded a son as well. Since she was his property so he wanted anything in return. इरीन ने वहाँ पर मना कर दिया। फिर फ्रस्ट्रेशन इसकी थी कि अब इसको फिर डिवोर्स ले, और दूसरी फ्रस्ट्रेशन थी इसको एक बच्चा चाहिए। So he wanted second marriage के लिए who was the candidate Annette Mallet, but he could marry this lady only after divorcing Irene because Irene was his legal wedded wife. इसलिए फिर उसने इरीन से डिवोर्स की बात की। इरीन को भी लगा कि now it is over and then things are not very well between them. इरीन से इसका डिवोर्स होना, एनेट से शादी होना ही इन चांसरी में है। अभी एक जो इंटरल्यूड था इंडियन समर ऑफ फोर्साइट, उसकी कहानी भी आपको बीच में बता देते हैं। इरीन के जब ये इसके डिस्टर्ब मैरिज चल रही थी तो इरीन की और ओल्ड जोलियन, ही वाज जस्ट लाइक अ फादर इन लॉ टू हर, दे हैड फ्रेंडशिप टाइप ऑफ रिलेशन। उसमें ही ओल्ड जोलियन ने इसको 15,000 पाउंड्स की लेगेसी दे दी इरीन को। उसका ट्रस्टी बनाया यंग जोलियन को। सो नाउ यंग जोलियन वाज इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी of Irene and Irene herself. He sympathized with Irene. जब इन चांसरी शुरू होती है, इन चांसरी की कहानी शुरू होती है, तो सोम्स उसको फॉलो कर चुका होता है and then she denied to bear a child for him. उसने डिसाइड कर लिया कि सेकंड मैरिज करेगा because he wanted a son by all means at any cost and for which he also decided to get separated from इरीन। इन चांसरी में जब बात शुरू होती है कोर्ट में, तो ये कोर्ट है, इन चांसरी इज द कोर्ट। विनीफ्रेड की जो एक डिस्टर्ब मैरिज चल रही थी इसके साथ, सोम्स की इरीन के साथ, इन दोनों के ही केसेस इन चांसरी में डील होते हैं। उसी नॉवल में मेजर शेयर तो नॉवल का उसी में चला जाता है। उसकी कहानी तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़िए। सोम्स की इरीन से डिवोर्स हो जाता अल्टीमेट। सोम्स एनेट मैलेट से मैरिज कर लेता है। सो नाउ द सेकंड वाइफ ऑफ सोम्स इज एनेट Mallet. With Annette Mallet, he had a daughter, Fleur. Quite ironically, Soms wanted a son. Unfortunately for Soms, this time it was a daughter, not a son. उसके बाद में Annette Mallet की कहानी खत्म हो जाती है। There is no mention later on in any of the novels. अब जो कहानी शुरू होती है वो Soms की शादी Annette Mallet से, उनकी एक बेटी। जो पैरेलल कहानी चलती है वो क्या चलती है, इरीन क्योंकि अब अकेली थी, डिवोर्स के बाद अकेली हो चुकी थी और अभी भी उसको जो सिंपैथाइज करता था यंग जोलियन करता था। यंग जोलियन उसकी प्रॉपर्टी की भी लुक आफ्टर करता था। सो यंग जोलियन सिंपैथाइज्ड विद हर एंड देन यंग जोलियन मैरिड। इरीन वाज थर्ड वाइफ ऑफ यंग जोलियन। इरीन ने यंग जोलियन से शादी कर, उन दोनों के एक बच्चा हुआ जॉन। कुल मिलाकर के यंग जोलियन के 4 चिल्ड्रन थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। First was from Francer, second and third from Helen and fourth from Irene. इन दोनों की, अब तीनों की, जून, जॉली एंड होली, इनकी कहानी खत्म हो गई। इनका कोई मेंशन आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल कहानी शुरू हुई है इरीन की और जॉन की। जॉन इरीन और यंग जोलियन का बेटा, फ्लूर सोम्स एंड एनेट मैलेट की बेटी। जॉन एंड फ्लूर दे मेट एक्सीडेंटली एट आर्ट गैलरी एंड देन दे स्टार्टेड
फैसिनेशन टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों की लाइकिंग शुरू हुई। इन चांसरे की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। जो थर्ड और जो फाइनल नॉवल है फोरसाइट सागा की, टू लेट। टू लेट कहाँ से शुरुआत होती है? जहाँ से इन चांसरी फिनिश होती है, खत्म होती है। अब तक क्या हुआ आपको पता है। सोम्स फोरसाइट एंड एनेट मेलेट दे हैड रीमैरिड। सोम्स फोरसाइट एंड इरीन दे डिवोर्स्ड। सोम्स फोरसाइट divorced Irene. Irene married young Jolyon. They had a child, John. Soames married for the second time Annette Mallet. Soames and Annette Mallet had a daughter, Fleur. Fleur and John, they had started a liking. यहाँ liking से ही ये to let start होती है। They were quite unaware of the feud between young Jolyon and Soames. जॉन को और ना ही फ्लोर को ये पता था दैट देयर वर द एनिमिटी रिलेशनशिप बिटवीन यंग जोलियन एंड सॉम्स। सॉम्स को जब ये पता चला दैट हिज डॉटर वॉज बीइंग chased by John and John was the son of his enemy young Jolyon, and moreover now this time Irene was also his enemy. It was this property that he could not own, so एक frustration थी। So he started creating nuisance. Soames Forsyte created nuisance. कुछ ना कुछ इसने पंगा लेना शुरू कर दिया। जॉन को अभी पता नहीं है। यंग जॉलियन को जब पता चलता है इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो यंग जॉलियन जॉन को, अपने बेटे को सारी बात बताता है। ही टेल्स एवरीथिंग अबाउट हिज पास्ट विद हिज मदर, द पास्ट ऑफ हिज मदर विद सोम्स फोरसाइट, whose daughter Fleur he was chasing or pursuing, ये सारी चीज़ें बताई उसको। and then he wanted John not to see Fleur. meanwhile Fleur को एक और पर्सन डॉट कर रहा था। he was a suitor to Fleur, माइकल मॉन्ट। माइकल मॉन्ट इनका एक डिस्टेंट कजिन था। माइकल मॉन्ट आगे की नॉवेल्स में लीड रोल में रहेगा, वन ऑफ द लीड रोल्स। बट ही वॉज अ बैरोनेट, he was a landlord baronet, he was an affluent person. Michael Mont loved Fleur, he wanted to marry Fleur, but Fleur loved John. John को जब पता चलता है यंग जोलियन से that his mother and his would be father-in-law, it was would be only, it was never was, so they had enemy relationship. उसी ड्यूरेशन में यंग जोलियन की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। John was attached to his father and then he wanted to respect the dead father. The only way to respect his dead father was to do what he desired. And young Jolyon desired that his son should not marry Fleur. John ने अपनी relationship Fleur से break कर दी। Fleur again she was alone, and since she had one suitor, though she did not love this Michael Mont, लेकिन फिर भी उस जमाने में शादी होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। It was a social ethos to get married. The people who were married were respectable. They were considered to be the integral part of the society, the responsible people of the society. So marriage was a kind of necessary institution in that late Victorian age. So Fleur had to marry, and if he has to marry a person who has a lot of money to his credit, so it was a better option. If not, she loved him, so love would come later on. Love may follow. हो सकता है इसको बाद में उससे प्यार हो जाए। एनीवे, सो फ्लोर मैरिड माइकल मॉन्ट। इनकी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। जॉन एंड इरीन दे मूव्ड टू कैनेडा, दे लीव फॉर कैनेडा। जॉन और इरीन कैनेडा चले जाते हैं। जॉन ने वहाँ पे जाके शादी कर लेती है। टू लेट की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ की बात भी, अब टू लेट तक की कहानी ख़त्म हुई, यानी जो फोरसाइट सागा है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? यंग जोलियन की हार्ट अटैक से डेथ, जॉन का फ्लूर से ब्रेकअप का होना, फ्लूर का माइकल मॉन्ट से शादी करना, और इरीन का और जॉन का कनाडा चला जाना। ये टू लेट की कहानी यहाँ पे फिनिश होती है। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स ऑफ द मॉडर्न कॉमेडी। So in the starting of this White Monkey, the first novel of modern comedy, the sequel of Forsyte Saga, we have Soames, we have Fleur. Fleur is married to Michael Mont. When the story starts, Fleur is shown to be a spoiled, arrogant and pleasure-loving creature. Since she was married to an affluent person, so इसको पैसे खर्च करने के लिए टाइम ही टाइम था और उस सोसाइटी को एंजॉय करने के लिए टाइम था। एक एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को एंजॉय करने का, वहाँ पर शो ऑफ करने का, फ्लॉन्ट करने का अपनी ड्रेसेस वगैरह, एंड देन अपनी लाइफ को अपने
कंडीशंस पे माई लाइफ माई रूल्स टाइप की वो एक लेडी हो चुकी थी। द ओनली थिंग दैट लैक्ड इन हर लाइफ वॉज लव ऑफ हर हस्बैंड माइकल मॉन्ट। माइकल मॉन्ट टू लेट में जिस तरीके से द वे ही प्रोफेस्ड हिज लव, ही प्रोफेस्ड द सिंसेरिटी ऑफ हिज लव, वो इस नॉवल में कहीं मिसिंग थी। माइकल मॉन्ट बिकेम अ मैन ऑफ द वर्ल्ड rather than a man of family. So he did not spare so much time, he did not love her, or so she was feeling. But at the same time she was enjoying her life. उसकी लाइफ में आता है एक लवर और सूटर perhaps, or it was a suitor, more a suitor than a lover. Wilfred Desert. Wilfred Desert was an artist kind of person of creative genius. So इस तरह के लोग वैसे भी बड़े क्वालिटी वाले होते हैं. So the moment he saw Fleur, he started chasing her. He started advancing towards her. He wanted to seduce her. Fleur भी उसकी कंपनी को एंजॉय कर रही थी because emotional love or emotional satisfaction was the only thing that she did not get from Michael Mont. So for her it was natural to be attracted by a person who professed love or sincere love so called. Wilfred के साथ इसका एक अफेयर, वर्चुअल अफेयर स्टार्ट हो जाता है. हालांकि she did not openly confess her love or profess her love because still she was the lady of that society where these extramarital affairs were considered to be adultery, जो लेट विक्टोरियन एज की जो इथोस थी. अभी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहती. She could not love that person at the cost of the family, particularly cost of her husband, but still she wanted or she was enjoying the company and love of this person. इसके व्यवहार में कुछ चेंज हुआ and then Michael Mont sensed it. He felt that something was going on with Fleur and some other person, and he got to know who that person was. It was Wilfred Desert. So he frankly spoke to her. यहाँ पे आप हम दिल तेरे सनम वाली कहानी को रिफर कर सकते हो. ऐश्वर्या राय is Fleur, Salman Khan is Wilfred Desert, and Michael Mont is wedded husband Ajay Devgan. When Ajay Devgan got to know that his wife was loving someone else, and then he could not win her, so he played an emotional card. जैसे अजय देवगन ने उसे कह दिया कि भाई ओके, if you want to go to Salman Khan you can go, I'm not forcing you, and then from my side you are quite free. Michael Mont ने भी वही कार्ड खेला, इमोशनल कार्ड, कि if you want to love that person, if you want to remain with that person, you are quite free from my side, you can choose anything you like. I won't force you, I won't impose my own decisions on you, I loved you simply, and as such I don't have any proprietorial rights on you, I don't think you my property or this or that. 50 तरह की बातें उसने कह के फ्लूर को इमोशनली टच कर दिया. फ्लूर को बात समझ में आ गई कि यार ठीक नहीं है, मतलब टू गिव अप दिस काइंड ऑफ हस्बैंड, दिस काइंड ऑफ पर्सन. ही इज अ मैन ऑफ हर लव एंड ही इज अ मैन ऑफ हर लाइफ, सो लाइफ वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन हर लव. दूसरी बात, विक्टोरियन सोसाइटी का तो एक अलग ही जलवा था उस समय. दिस रिलेशनशिप कुड बी कॉल्ड एन एडल्ट्री और समथिंग लाइक दैट. सो बाद में कंडीशंस अच्छी नहीं होती. सोम्स तो इस समय थोड़े बूढ़े हो चुके थे. सो ही वॉज वॉचिंग द सीन एंड देन ही फेल्ट वेरी ग्रीवियस एट हार्ट. बेटी भी किसकी चाल चलने लगी अब? इरीन की तरह बिहेव करने लगी. दैट तो वही हिस्ट्री वॉज रिपीटिंग इट सेल्फ बिफोर सोम्स, एंड सोम्स वॉज एट दिस टाइम सोरोफुल. ही डिड नॉट लाइक दैट फ्लूर शुड लव एनी पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ हर हस्बैंड. जो वो ट्रम्प कार्ड खेला माइकल मॉन्ट ने, वो काम कर गया और फ्लूर गॉट बैक टू माइकल मॉन्ट लिविंग विल्फ्रेड डेजर्ट अलोन, कि भाई तुम जाओ, अब तुम हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो. अब फिलहाल ये शिल्पा शेट्टी बन गई धड़कन की. अब बेचारा सुनील शेट्टी कुछ नहीं है इनके लिए. अब अक्षय कुमार इनके राम बन गए. एंड देन दे हैड अ सन इन दिस नॉवल एज वेल. दोनों फैमिली बढ़िया तरीके से जीने लगे. माइकल मॉन्ट को भी थोड़ा सा लगा होगा कि भाई अगर फ्लोर को अपने साथ रखना है, सो ही हैज़ टू शो अ लिटिल लव एज वेल. इनके एक बेटा भी हुआ. एंड देन दे वर लिविंग हैप्पीली, एंड सो वाज सोम्स एज वेल. He was also happy. End of the story. Now the second novel of modern comedy is Silver Spoon. Silver Spoon की कहानी कहाँ से शुरू होती है? Fleur brought back to Michael Mont after the departure of Wilfred Desert. Wilfred Desert अब पुराने जमाने की बात हो गई. Michael Mont एक influential आदमी बन चुके थे. He started being a politician in the previous novel, and now he was nominated to Conservative Party for a seat in Parliament. So he was nominated to Conservative Party. अब ये फुल फ्लेज्ड एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिशियन हो चुके थे. क्योंकि इनको ऐसा क्यों मिला? बिकॉज ही स्टार्टेड सपोर्टिंग अ प्लान. इट वाज अ काइंड ऑफ प्लान फॉर सोशलिज्म.
उस प्लान का नाम क्या था? फोगार्टिज्म। फोगार्टिज्म इज ए सटायर ऑन फेबियन सोशलिज्म। सो उस फेबियन सोसाइटी या फेबियन सोशलिज्म के ऊपर ये सटायर था, किसका? फोगार्टिज्म। सो जॉन गॉल्सवर्दी wanted to satirize the concept of Fabian socialism by presenting it as Fogartism. Fogartism को लेकर के he got the party ticket and then he was nominated for the parliament. अब ये एक parliament में candidate हो चुके थे and then he was gaining influence in the society as a politician and his wife Fleur was gaining influence in her society as well. अब इसके पास और भी मौका था अपने उस प्लेजर वाली लाइफ को फर्दर जीने का, सोसाइटी को चेरिश करने का, एंजॉय करने का, उस एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को पूरी तरीके से एंजॉय करने का। अब यहाँ पर एक विलेन आता है इनकी लाइफ में, उसका नाम क्या है? मार्जोरी फेरर। मार्जोरी फेरर का कैरेक्टर यहाँ पे इसमें अभी देने से रह गया। सो यू कंसीडर दिस अदर कैरेक्टर। इस कहानी के लिए तो ये मेजर कैरेक्टर की तरफ में, वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन सिल्वर स्पून। सो मार्जोरी फेरर वाज अ फॉइल टू दिस कैरेक्टर माइकल मॉन्ट। अब जैसे हर किसी पॉलिटिशियन के राइवल खड़े हो जाते हैं तो समटाइम्स द राइवल इज मोर इम्पोर्टेंट। सो दिस वाज द केस विद मार्जोरी फेरर। मार्जोरी फेरर माइकल मॉन्ट को और उसकी वाइफ को चेज करना शुरू उसने कर दिया। He was gaining popularity, so was his wife. So Marjorie Ferrer, he had also an scandalous life. So Marjorie Ferrer was trying to get something scandalous from the life of Michael Mont so as to decrease his popularity in the society, in the parliament. And then he also did not like the way Fleur was leading her life. She was also the woman of the town that time. She was living the life to its lease, जैसे होता ना, to live the life to its lease. मार्जोरी फेरर ने इन दोनों को टारगेट करना शुरू कर दिया and the condition went to this extent that Fleur had to sue him. She filed a case of defamation against Marjorie Ferrer. मानहानि का दावा जैसे करते हैं वो जो केस था, द केस ऑफ डिफेमेशन, जो ट्रायल था, ये ट्रायल ही इस नॉवल का सेंट्रल पार्ट है। इसमें किस तरीके से अटैक एंड काउंटर अटैक मार्जोरी फेरर वाज ट्राइंग टू गेट समथिंग स्कैंडलस फ्रॉम द लाइफ ऑफ माइकल मॉन्ट एंड इन टर्न Michael Mont was also getting something scandalous from his life, and as such both of them they were trying to defame the opponent to their fullest. Since Michael Mont was a politician, he was a man in power, so the judgment came into their favor. Fleur won the case. हालांकि लास्ट में जो हुआ वो माइकल मॉन्ट की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हुई। मार्जोरी फेरर स्कैंडलस होने के बावजूद भी उसके बारे में लोगों को बहुत कुछ पता चला, उसकी पास्ट लाइफ के बारे में। फिर भी माइकल मॉन्ट से ज़्यादा वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पे सब लोगों के सामने आया। उसका ज़्यादा कोई रोल यहाँ पर नॉवेल्स के कॉन्टेक्स्ट में है नहीं। यहाँ पे फिर इनका बच्चा जो था वो और ये एक अच्छी लाइफ जीना शुरू उन्होंने कर दिया। और जब ये सारा खत्म हो गया तो फ्लूर वांटेड टू विजिट द वर्ल्ड, टू ट्रैवल द वर्ल्ड, एंड दिस विश वाज कंप्लीटेड बाय हर फादर सॉम्स फोरसाइट। सॉम्स फोरसाइट ने फ्लूर को एक वर्ल्ड टूर करा डाला बिकॉज शी वांटेड अ चेंज इन हर लाइफ। शी वांटेड टू लीव इंग्लैंड फॉर सम टाइम सो एज टू लिव द लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड एंड शी वांटेड टू विजिट द एंटायर वर्ल्ड। सॉम्स फोरसाइट अपने बेटे की ये ख्वाहिश पूरी कर ले। यहाँ पर सिल्वर स्पून का मतलब क्या है कि द बॉय दैट वाज born with a silver spoon in his mouth. He was the luckiest child in the entire family. सब कुछ ठीक था उसकी लाइफ में। यहाँ पर ये सिल्वर स्पून खत्म होती है। लास्ट नॉवल ऑफ दिस मॉडर्न कॉमेडी इज ए स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का लिटरल मीनिंग क्या होता है? द लास्ट अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम पर्सन। क्रिएटिव पीस ऑफ एनी क्रिएटिव आर्टिस्ट इज हिज लास्ट सॉन्ग। सो द वेरी लास्ट क्रिएशन और द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एनी पर्सन इज स्वान सॉन्ग. And here this accomplishment is of Soms Forsyte. Soms Forsyte has turned 70. So he has grown old and now he is kind of virtuous person. जो इसकी लाइफ के स्कैंडल्स थे वो सब पीछे छोड़ करके now he was trying to make his scandalous life worth dying for. लास्ट में जैसे कागज सुधारते हैं ना अपने, तो he was also trying to make amends. So the last accomplishment which we'll discuss later, वो accomplishment क्या थी इसकी स्वान सॉन्ग था। यहाँ पर फ्लूर लौट आई अपने वर्ल्ड टूर से अपने फादर के साथ और माइकल मॉन्ट पार्लियामेंट को अच्छी तरीके से चला ही रहे थे, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एंड ही वाज
living his political life very famously. Fleur was also living this life. The setting of the novel is in 1926, and this was a time of the famous general strike of Britain. So actual जो historical event है वो general strike जो ब्रिटेन में, ये इसकी बैकग्राउंड है इस नॉवल की, स्वान सॉन्ग की। स्ट्राइक, एक तरफ स्ट्राइक और एक तरफ स्ट्राइक ब्रेकर्स। एक तरफ जो स्ट्राइक पीपल थे, दोज हु वर होल्डिंग दिस स्ट्राइक, ऑन द अदर हैंड सम पीपल ऑफ गवर्नमेंट। ये कौन थे? रेलवे वर्कर्स थे, वॉलंटियर रेलवे वर्कर्स थे, दोज हु वर ट्राइंग टू ब्रेक दिस स्ट्राइक। अब गवर्नमेंट की साइड में तो पॉलिटिशियंस को होना ही है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट खुद थे, he was the government himself. So he persuaded Fleur to open a canteen for the volunteers कौन थे? वो रेलवे वर्कर्स। और अब ये उस जनरल स्ट्राइक को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए ये एक मुहिम चल रही थी। Fleur was engaged in this political event. She is active in any political event in this Swan Song only. So far she was managing her life, managing her family, enjoying her life, enjoying her family, having affairs, releasing them, leaving them, coming back to her husband, begetting a child, living happily, making world tour. So she was doing everything except doing something for political cause. This is for the first time that she participated in the cause that was generated by her husband Michael Mont, that is opening a canteen. ये चल रहा था। अब यही वो नॉवल है जिसमें कि जितने भी सर्वाइविंग फोरसाइट्स हैं। अब सर्वाइविंग फोरसाइट्स कौन कौन है? एक तो सॉम्स फोरसाइट, एक फ्लोर फोरसाइट, माइकल मॉन्ट तो इनका दूर का रिश्तेदार है ही, और सर्वाइविंग कौन है? इरीन, जो बचे हुए थे, इरीन का बेटा जॉन। इतने लोगों से हमें मतलब है, एक फ्लोर एंड एक माइकल मॉन्ट। इतने लोगों से, एनसर्किल्ड लोगों से हमें इस स्वान सॉन्ग में मतलब है। जब ये कैंटीन चली रही थी, मतलब स्ट्राइक और स्ट्राइक तोड़ने की कवायद चल रही थी, जॉन ने अभी कनाडा चला ही गया था, तो वहाँ पे जाके शादी कर ली इसने, और अपनी वाइफ को लेकर के, इरीन को लेकर के, अपनी माँ को लेकर के ये ही कम्स बैक टू इंग्लैंड विद हिज वाइफ एंड मदर। इरीन, वाइफ का नाम इसमें दिया नहीं, नॉवल में दिया होगा, पढ़ लेना उसको। जॉन को सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक की वो क्या किया? द जनरल स्ट्राइक इटसेल्फ। द जनरल स्ट्राइक strikes John and John becomes a volunteer. John joins the canteen and to fight the strike. उसी स्ट्राइक में, उसी मतलब वॉलंटियरिंग वर्क में फ्लूर को जॉन दिखता है। अब ये एक ऐसी कहानी समझ लिए, इसको आप रेफर कर सकते हो ऐतराज। आपने मूवी देखी होगी प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की, ऐतराज, जिसमें फ्लूर को जॉन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पे लास्ट सिमिलर हो जाएगा। जॉन पहले फ्लूर को छोड़ देता है। फ्लूर कहीं ना कहीं तब से ही उसके माइंड में रहा होगा, मतलब हाउ कम शी वॉज लेफ्ट, व्हाट फॉल्ट शी हैड that a person like John could leave her. She was beautiful all the more and she had all the qualities to attract a man like John. Still John left her even though he loved her. कहीं ना कहीं कुछ माइंड में उसके रहा होगा। Moreover अभी भी वो जो 100% इमोशनल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो अभी भी इसको कमी थी इसकी लाइफ में। Or perhaps it was not a lack, she created that lack for herself. She was living in that society, so thinking for other men was not very uncommon for ladies of aristocratic society that time. The moment she sees John, वो जो पुराना प्यार, पुराना दर्द सब वापस आ जाता है, and then she feels emotionally aroused. अभी क्योंकि ये बेटी किसकी थी? सॉम्स की थी, कहीं ना कहीं इसकी रगों में जो पजेस करने वाला जो खून होता है वो दौड़ रहा था। She wanted to possess any person who was related to her. अब how come a person can come before her who had left her, who had refused, rejected her? तो वो कहीं ना कहीं possess करने की, a sense of possession was dominating and that she was inherited from her father even. तो जॉन को possess करना वो चाह रही थी। Now she was even more powerful than any John Pawn. She was the wife of a politician, the member of parliament. So by force or by fraud or by persuasion or by any means, she wanted to possess John. She wanted to seduce him. She wanted to make love with John in order to satisfy her quest, her thirst, her frustration. उसको कहीं ना कहीं satisfy करना चाह रही थी। John belied her advances. जॉन ने कह दिया कि नहीं भाई, आई कैन नॉट मेक लव विद यू बिकॉज आई हैव माई वाइफ एंड आई एम अ डिवोटेड हस्बैंड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी इज ओवर मच अर्लियर, सो नाउ देर इज नो यूज
just being chased or chasing or having or following this relationship. You go your way, I go my way, and then this is the end of our journey. But Floor कैसे बर्दाश्त कर पाती? उससे तो पजेस करना था. And then she kept on trying to pinch him, she kept on trying to persuade him, dissuade him, whatsoever. Ultimately she was successful in dragging John to Robin Hill. वो Robin Hill जो कि इरीन और जॉन के चले आने के बाद में अकेला था, खाली था. एक चीज़ इसमें रह गई लास्ट में, जो टू लेट क्यों था उस नावल का नाम, क्योंकि इरीन और जॉन के आने के बाद में वो रॉबिन हिल खाली हो चुका था और उस पर साइन बोर्ड लिखा हुआ था टू लेट, किराए के लिए. एनीवे वो घर तो अभी भी था, इनके कब्जे में ही था. वो रॉबिन हिल वहाँ पर ले गए जॉन को, एंड देन शी वॉज सक्सेसफुल इन सेड्यूसिंग हिम. अ काइंड ऑफ रेप, आप ये ऐतराज़ से इसको रेफर कर सकते हो. जब प्रियंका चोपड़ा ने शादी तो कर ली अमरीश पुरी से, she got infinite money, value, everything, the aristocratic life and all the things that money could buy, but she was still in search of the love of her life. As for Priyanka Chopra, Akshay Kumar was that love, so is John for Floor. As Priyanka Chopra wanted to satisfy her frustration and thirst and sexuality by seducing Akshay Kumar, so was Floor with John. John ने, जैसे उसमें प्रियंका चोपड़ा was virtually successful in seducing Akshay Kumar, this was the case with John and Floor as well. But after that love-making scene, John realized that he had made a blunder. It is an unpardonable offense because he was also representing the society where having extramarital affairs or sex outside the marriage was an adultery, both for the husband and wife. So he was feeling very guilty. Floor also realized that she had been successful in seducing John only for once, and John cannot be in her life, John cannot be hers forever. तो वो frustration उसकी थी. John अपने घर गया, and then before he could say anything, his wife broke the news that she was pregnant. एक और guilty feel होने लगा इसको कि I cheated my wife, the wife who loved me dearly. उसने फिर confess कर लिया wife के सामने that this is what he had done, and then he begged her forgiveness, and then he promised that he would not do such kind of thing again in her life, or this thing or that thing. Wife was an ideal woman for Victorian society, and then she forgave him. वो life वहाँ पे खत्म हुई. Floor frustration में थी कि how come the person can leave her for the second time. She went her home. Her father was in the library, and then she also went there. She lit a cigar or cigarette, and then accidentally she threw the lighted cigar or cigarette in the library itself. जलती हुई सिगरेट उसने वहाँ पे छोड़ दी. वो एक्सीडेंट होना ही था, मूवी थी, नॉवल थी, तो होना ही था एक्सीडेंट. वो सिगरेट जिससे एक पत्ता तक न जले, लेकिन पूरी लाइब्रेरी की बुक्स में वो आग लगा दी उसने. आग इतनी भयंकर कि सॉम्स फोरसाइट को अब चैलेंज था कि किस तरीके से फ्लोर को बचाया जाए, फ्लोर के बेटे को बचाया जाए, बाकी नौकरों को बचाया जाए, क्योंकि आग देखते देखते पूरे घर में फैल गई थी, बिल्कुल तैयार बैठी थी आग लगने के लिए. उसी चक्कर में सॉम्स खुद झुलस गया. एक ऐसी मोमेंट आई कि एक बड़ी सी पोर्ट्रेट थी फ्लोर की, जो कि विंडो के ऊपर लगी हुई थी. इतनी बड़ी थी वो कि अगर किसी पर्सन के ऊपर गिर जाए तो जान से तो मार ही दे. एंड सॉम्स ऑलवेज फेल्ट प्लीज्ड लुकिंग एट दिस पोर्ट्रेट सो ऑफन. ऐसी मोमेंट आई कि फ्लोर उसी खिड़की के नीचे फंस चुकी थी, एंड शी वॉज नॉट अवेयर दैट द पोर्ट्रेट वुड फॉल अपॉन हर, because one by one all the objects they were falling apart, they were falling down. सॉम्स के सामने दो ऑप्शंस थे, अपने आप को बचाए, अपनी बेटी को बचाए. पोर्ट्रेट गिरने वाला था, पूरी थिएट्रिकल सिचुएशन हो चुकी थी, ऐसे सीन आपने खूब मूवीज में देखे होंगे. अब उसने बिफोर द पोर्ट्रेट फेल ऑन हिज डॉटर, वो एक बड़ी तगड़ी सी एंट्री मारी उसने, फ्लोर को पुश किया विंडो का बाहर, और खुद ऊपर उसका सारा वो जो अटैक होना था पोर्ट्रेट का वो ले लिया. अल्टीमेटली in saving the life of his daughter, poor Soms was killed. This is the sacrifice that he made, and this way he made amend to his scandalous life. And this was his swan song. कारनामे कांड इसने बहुत किए अपनी लाइफ में, लेकिन ये जो कारनामा था ये लाइफ सेविंग कारनामा था. लाइफ सेविंग particularly of that person he loved. Undoubtedly he loved his daughter. He was successful in saving the life of his daughter, and in this way there was some meaning to his life. Ultimately during his life ना सही, लेकिन मरते मरते जाते जाते एक दूसरे को ज़िंदगी दे गया. ये इसकी लाइफ का
लास्ट अकम्पलिशमेंट था, यही स्वान सॉन्ग था, द लास्ट अकम्पलिशमेंट ऑफ एनी पर्सन। यहाँ पर खत्म हो जाती है कहानी द मॉडर्न कॉमेडी की और स्वान सॉन्ग की। नाउ द सेकंड सीक्वल और द लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द फोरसाइट क्रॉनिकल्स इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इट इज अ ट्रायलॉजी एंड देन द फर्स्ट नॉवल इज द मेड इन वेटिंग। मेड इन वेटिंग का जो मेडिवल सेंस में मीन क्या होता है, एन अटेंडेंट टू क्वीन और प्रिंसेस। लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो ना तो किसी क्वीन के और ना ही प्रिंसेस की कोई अटेंडेंट है। शी इज़ द आइडियल वुमन ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू जॉन गोल्सवर्दी एंड हर नेम इज़ डिनी चैरल। दिस इज डिनी चैरल। डिनी चैरल इज़ द कजिन ऑफ माइकल मॉन्ट। माइकल मॉन्ट की फ्लोर उलूर की सबकी कहानी खत्म हुई इसमें। यहाँ पर माइकल मॉन्ट की कजिन की डिनी चैरल, जो प्रोनाउंसिएशन इसका चैरल, उसकी कहानी शुरू होती है। डिनी चैरल इज द मेड इन वेटिंग एंड देन शी इज एन आइडियल विक्टोरियन वुमन इन द व्यू ऑफ गोल्सवर्दी। सो शी इज नॉट प्रेजेंटेड एज अ मेड और एन अटेंडेंट or a servant to queen or princess. She is simply a respectable lady of the society, a lady of the morals, a lady of the virtues, a lady who loved her society and her family, the members of her family. She knew how to sacrifice for the sake of the family. She knew how to keep intact the honor of the family. So she was an ideal woman. So Dinny Cheryl, the Charles आपको बताए थे अभी। द चैरल्स आर द मेटरनल एंसेस्टर्स ऑफ द फोरसाइट्स, और पर्टिकुलरली अगर मेटरनल एंसेस्टर्स की बात करते हैं सो द चैरल्स रिप्रेजेंट मेटरनल एंसेस्टर्स ऑफ गोल्सवर्दी। द फोरसाइट्स रिप्रेजेंट गोल्सवर्दीज खानदान ऑफ गोल्सवर्दी, और चैरल्स रिप्रेजेंट द खानदान ऑफ मेटरनल ancestors Michael Mont and his. Dine Cheryl जो इस फर्स्ट नॉवल में she does not love, she does not want to love, she does not go against the values of the family. So पूरी तरीके से फैमिली वुमन वो थी, अपने फैमिली मैन के लिए, फैमिली पीपल के लिए सब कुछ करने वाली थी। डिनी चैरल का भाई था कैप्टन हर्बर्ट, और एक सिस्टर थी, कजिन थी एक क्लेयर, उसकी कहानी बाद में आएगी भी। कैप्टन हर्बर्ट की कहानी और डिने चैरल की कहानी इस नॉवल में है। कैप्टन हर्बर्ट killed a man, हालांकि it was in self-defense. However, nevertheless, he was charged of a murder. She knew that her brother was innocent, and then she tried everything to save the brother. जो sisterly love that came to fore, that predominated. तो उसने बहन का पूरा फर्ज निभाने के लिए कुछ भी कर गुजर जाए वो अपनी लाइफ के सेक्रीफाइस करने पड़े। Whatever was needed, she would do. She did, and ultimately the novel moves around the story of Dine Charles saving her brother, who was charged of killing a man, though it was in self-defense. So ultimately she was able to save that brother. ये कहानी मेड इन वेटिंग की है। डिने चैरल की अपनी कोई कहानी, अपनी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, जैसे लव अफेयर वगैरह टाइप के भरे पड़े हैं आपको पूरे फोरसाइट फैमिली में, लेकिन डिने चैरल so far she was untouched of this love. End of the story. Now the next novel of the second sequel of Forsyte saga is Flowering Wilderness. ये भी डिनी चैरल की कहानी है। यहाँ पर क्या होता है, डिनी चैरल was living her life happily. No, nothing happened in her life for some time. No adventure, no accident. It was easy going life. All of a sudden, life में कुछ नहीं होगा तो फिर कहानी कैसे बनेगी? So some complication had to be there. डिनी चैरल की लाइफ में एंट्री मारते हैं भाई साहब विल्फ्रेड डेजर्ट। विल्फ्रेड डेजर्ट वही हैं जो वाइट मंकी में फ्लोर के सेड्यूसर, वुड बी सेड्यूसर थे। He could not succeed in her mission before that Fleur left him. Anyway, it was a transitory affair, an affair in transition, ऐसा कह सकते हो, सीजनल प्यार कह सकते हो आप उसको। एक टाइम आया, आके चला गया। उसको तो तलाश थी, सनम तू है हर जाई तो अपना भी तौर सही, तू नहीं तो और सही और नहीं तो और सही। So he was in search of anybody could be that और सही। शी वॉज डिनी चैरल। डिनी चैरल को मिलते हैं ये और अफेयर स्टार्ट हो जाता है। डिनी चैरल सो फार शी वॉज अ वर्चुअस लेडी, शी केप्ट ऑल द सूटर्स अवे फ्रॉम हर, शी वॉज अ वुमन ऑफ द सोसाइटी, वुमन ऑफ द फैमिली और दिस और दैट, हजार तरह की जो क्वालिटीज थी। शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट लव और शी डिड नॉट वांट टू हैव अ लव इन हर लाइफ। एनीवे द मोमेंट शी सॉ दैट पर्सन दे हैड इंटरेक्शन एंड देन दे स्टार्टेड
meeting frequently and then their affair started. डिनी चैरल को विल्फ्रिड डेजर्ट मिल गए, इनकी लव स्टोरी शुरू होती है. फ्लावरिंग वाइल्डनेस. फ्लावरिंग मतलब ब्लॉसमिंग एंड ब्लॉसमिंग समथिंग फ्रूटफुल, बट हेयर इट इज ब्लॉसमिंग वाइल्डनेस. जो प्यार के कमल खिलने चाहिए थे लेकिन वो प्यार के कैक्टस खिलते हैं यहाँ पे. क्या होता है? विल्फ्रिड डेजर्ट हिट समथिंग फ्रॉम हिज लाइफ. जो भी व्हाइट मंकी से कहाँ टहल रहे थे, ये कहीं घूम रहे थे. ये कहाँ थे? मिडिल ईस्ट में. इन मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज टाइप की आप समझ लीजिए. मिडिल ईस्ट जैसे इजिप्ट भी समझ लीजिए, और जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे तुर्क वुर्क समझ ली, टर्की. ही मे हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ कांड वांड कर दिया होगा इन्होंने. एंड देन ही फेस्ड डेथ पेनल्टी. द ओनली वे टू अवॉइड दैट डेथ पेनल्टी वॉज टू कन्वर्ट टू इस्लाम. वो डेथ पेनल्टी को बचने का एक ही तरीका था वहाँ पे, that he would convert to Islam. He converted to Islam because उससे पहले भी इसके लाइफ में कोई रिलीजन की कोई वैल्यू थी नहीं. So if the name religion could become a life savior object, better to be a living Muslim than to a dead Christian. धर्म तब भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मान रहे. नाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कि जिंदा रहेंगे तो ठीक ही है. So he was this past. कुछ टाइम तक ऐसे ही रहा और फिर ये इन्होंने यहाँ पे. बिकॉज ऑफ दैट ही फेस्ड एक्स कम्युनिकेशन फ्रॉम द क्रिश्चियन सोसाइटी एज वेल व्हेन ही केम बैक. क्रिश्चियन सोसाइटी ने भी इनको क्या किया? एक्स कम्युनिकेशन, जैसे हुक्का पानी बंद कर देते हैं. सो ही वॉज ऑस्ट्रेसाइज्ड. इट इज ऑस्ट्रेसाइज्ड और एक्स कम्युनिकेट. एनीवे चलता रहा बात. विल्फ्रेड इनसे मिले, प्यार हुआ, सब कुछ हुआ. व्हेन शी गॉट टू नो इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज शी वॉज a woman of the society first, then her own personal life. अपनी personal life तो इनकी ज़्यादा कुछ थी नहीं, and she did not want that life over the life of her society. तो बड़ा shocking news थी. उसको excommunication मिल गया and then he went into obscurity in Siam. सियाम में ये चले गए और फिर कहाँ गए? गुमनामी की ज़िंदगी. पता नहीं क्या हुआ इनका, कुछ नहीं हुआ इनका. इनकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है. डिनी चैरल उस सदमे को झेल नहीं पाई एंड देन शी डिड नॉट डाई. शी फेल इल सीवियरली. बहुत बड़ा शॉक लगा इनको. बीमार पड़ी, बीमार से रिकवरी हुई, तो रिकवरी में बस ये कोशिश की जा रही है कि रब्बा इश्क ना होवे, अब नहीं करना है, तौबा. फिर दोबारा से अपनी वर्चुअस लाइफ जो पहली नॉवल में थी वही तरीके जीनी है. दूसरों के लिए जिएंगे, अपने लिए नहीं जिएंगे. प्यार में धोखा मिला, धीरे धीरे वो लाइफ में अपने आने लगी. वहाँ पर ये स्टोरी हो जाती है. Now the last novel of end of the chapter, end of Forsyte Chronicles, Over the River. It was posthumously published in 1933. It was published after the death of Galsworthy. End of the chapter was collectively published in 1934. It was also posthumously. The background is Great Depression following the World War First. The setting of the novel is in 1931, Great Depression, against the backdrop of Great Depression. The story, as we left in this flowering wilderness, Dini Chäril was very much grieved by the desertion, by the fraud that was done to her by Wilfrid Desert. Anyway, she recovered. Now in her life, one another mission. Pure woman, or a woman of values and virtues, a woman who could sacrifice anything for the sake of her family or anybody who came across. Anyway, Dini Chäril had a sister, Claire. Claire was married to Gerard Cowan, and then this marriage was a disturbed marriage again. In Galsworthy, all we have disturbed marriages because his was also a disturbed marriage. It was an unhappy marriage. So for the women characters, the characters who had ventured into extramarital affairs, they were all victims of bad marriages, be it Irene, be it in the starting floor, be it other characters even. So there are many other characters, Winifred. So they had been completely or to certain extent disturbed by their bad marriages. Claire was also no exception to this. Claire was completely dominated by this person. He was the echoing character of Soames Forsyte. उसी की कार्बन कॉपी थी. He also asserted his proprietorial rights. He beat his wife Claire and then he forced himself upon this Claire many times. So it was not an easy marriage, and then she needed a break. She needed to end this marriage. Gerard Cowan को ये Ceylon में छोड़ करके she left him in Ceylon. And while she was returning back to England on a ship that was headed to England, she met Tony Croom,
a poor person, Tony Kroom. They met, they conversed, they felt attracted, they fell in love. The same story. A woman who is not happy in her first marriage is attracted by any person she came across. The person was seemingly an ideal person, quite against, contrary to the image of her husband, first husband. So Claire, this is for Claire. Claire met this Tony Kroon on a ship. She fell in love. He fell in love with her. They loved each other, but they did not sleep together. Still, the society norms were prevailing in her. Claire was still a married woman of Victorian society, where extramarital affair or extramarital sex was not the norms of the day, or was against the very notion of ideal person in the society. It was considered to be an adultery. By this time, she kept this Tony Kroom away. When her husband Gerard Cowan, he got to know that his wife was having an affair with some person, so he became a vengeful. सॉम्स फोर्साइट तो बनी गया वो दोबारा से कोशिश करनी थी कि भाई ये कैसे सही से रह सकती है. He charged Claire and Tony of adultery. He wanted to harm them. उसका ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, वो चलता रहा केस. Ultimately क्लेयर को लगा कि यार वाई टू जस्ट हैव दिस काइंड ऑफ वर्च्यू, वाई टू सप्रेस द डिजायर ऑफ द बॉडी एंड टू कीप द वर्च्यू ऑफ द सोसाइटी विच इज नॉट लुकिंग favorably. With a blink of the eye, the very same society would turn against her. Her husband had presented her as a promiscuous woman or a woman of compromised character. So the society was believing it. So why to think about the society? She always wanted to have sex with Tony Kroom, and out of the frustration, she did that. So all we know about Tommy Kroon and Claire in this story. Anyway, this was the end of this story and end of her life with Gerard Cowan even. Dina Cheryl was living alone. She had overcome by this time of this Wilfrid love affair. Meanwhile, she got to know that he had died, drowned in Siam. She felt a sigh of relief. Okay, तू भी नहीं और तेरी यादें भी नहीं. It is an excuse to move on in the life. She had a suitor in the form of Austrace. Austrace was a man of property. He was an affluent person. So the case is almost the same. When the woman is not able to find her love, she always finds a wealthy person. Galsworthy कहाँ ये सब कुछ बड़ा कॉमन है, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं इनको. फ्लूर को प्यार नहीं मिला उसका जॉन, फ्लोर को पैसा मिल गया उसकी लाइफ में माइकल मॉन्ट. इरिन को कुछ नहीं मिला स्टार्टिंग में, इरिन को पैसा मिल गया सॉम्स. द सूटर वाज इन द फॉर्म ऑफ ऑस्टेस एंड देन शी मैरिड दैट पर्सन इन द एंड ऑफ द स्टोरी ओवर द रिवर, एंड देन ऑनवर्ड दे लिव्ड हैप्पीली और नॉट. शी न्यू, हर गॉड न्यू. हो सकता है लास्ट में पैसा तो मिला यहाँ पे इसको, लेकिन वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन ना मिलता हो. तो आगे की कोई अगर लाइफ स्टोरी बनेगी तो उसमें होगा कि डिनी चेरल ऑल्सो हैड एन अफेयर विद सम अदर पर्सन. एनीवे, वो हुआ नहीं हुआ, कहानी वहाँ तक खत्म हो जाती है. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड द फोरसाइट क्रॉनिकल्स. सो फार यू गॉट टू नो ऑल द मेजर कैरेक्टर्स, देयर रिलेशनशिप, देयर रोल्स इन द नैरेटिव. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ. Hopefully this video made you understand the complex relationship and the summary of all the novels in one video. So stay tuned for another such video. We'll come back very soon taking yet another video on an interesting topic that will be of great help to you for your examinations preparations. So like this video, share it among your friends, and if you have not subscribed to the channel, please don't forget to subscribe it right now. Thanks for watching.